Hallelujah, praise the Lord, and a very, very happy Mother's Day to all the mothers out there. We welcome you to Faith Fellowship of God's चर्च सर्विस. आप सबका स्वागत है आज की चर्च सर्विस का. और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज मदर्स डे है. पूरी दुनिया मदर्स डे को आज सेलिब्रेट कर रही है. तो मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहूँगी कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है. आई वुड लाइक टू रीड फ्रॉम प्रोवर्ब्स 31:10 verses onwards. An excellent wife who can find, for her worth is far above jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have lack of no gain. She does to him good and not evil, all days of her life. She looks for wool and flax, and works with her hands in delight. She is like merchant ships. She brings her food from afar. She rises also while it is still night, and gives food to her household, and portions to her maidens. She considers a field and buys it, and from her earnings plants a vineyard. She girds herself with strength, and makes her arms strong. She senses that her gain is good. Her lamp does not go out at night. She stretches out her hand to the staff, and her hands grasp the spindle. She extends her hands to the poor and stretches out her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She makes covering for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies belts to the tradesmen. Strength and dignity are her clothing, and she smiles at the future. She opens her mouth in wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also praises her, saying, Many daughters have done nobly, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her the product of her hands, and let her works praise her in the gates. हालेलुया. परमेश्वर के वचन में इतने खूबसूरती से लिखा है that how a noble woman, a daughter of the Most High God is. And हम लोग सबके जीवन में हमारी mothers hold a very special place because हम जानते हैं सुबह से लेके रात तक our mothers take care of us. But you know what? परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि दूध पिलाने वाली माँ तो भूल जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता. वो ना कभी हमें छोड़ता है और ना ही कभी हमें त्यागता है. सो आई जस्ट वांट टू ऑनर ऑल द women in our lives, and I want to especially honor my mom. Happy Mother's Day, Mama, because the sacrifices that our mothers make are just too much, to comprehend. So a big God bless to all the mothers out there. And आज हमारी worship में अगुवाई कर रहे हैं brother Daniel Verma गुड़गांव से. So let us prepare our hearts, to worship the Lord in spirit and in truth. Lord Faith Fellowship of God Church, don't change your channels. Please channel मत change करें. आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं. Yes, this is the church, and your pastor is Pastor Prashant Chaudhary. I'm very thankful to God. My name is Daniel. मेरा नाम Daniel है और मैं गुड़गांव से हूँ. And I just happen to know Pastor Prashant. He was staying in India. When he was staying in India, मैं उनके साथ काफ़ी टाइम के लिए रहा. And he's been a blessing to me, and I'm very thankful to God. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि Pastor Prashant के द्वारा I have been blessed with this opportunity. मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ गीतों को गाऊं, songs of praise and worship, and I just want to encourage each one of you that let's get excited, because I don't know हम में से कितने लोग इस लॉकडाउन के समय को किस तरीके से देख रहे हैं. How do we perceive this time? Let's not be surprised, क्योंकि बाइबल कहता है कि ये जो समय है ये आने वाला ही था. When the time is near, there will be such diseases, there will be such plagues that will happen. And this time is such a blessing, क्योंकि हमें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है. वर्क फ्रॉम होम, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो कॉलेजेस में हैं, जो स्कूल्स में हैं, उनको मौका मिल रहा है कि वो फैमिलीज के साथ और अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ाएं. सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि दो आई कैन नॉट सी यू, मैं आप लोगों को देख नहीं सकता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग को जानता हूँ, आप लोग को पहचानता हूँ.
but I'm very, very excited for this time that we have. Um, and I'm again very thankful to Pastor Prashant that he's giving me this opportunity. I would just want you all to prepare your hearts as we sing a few songs of praise and worship. And अपने हृदय को तैयार करें. Let's prepare our hearts. The Bible says, "Enter His gates with thanksgiving." I like this verse because it seems it's universal in every situation. हमारे लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन हो, अगर हम उसके फाटकों में प्रवेश करें धन्यवाद के साथ. That's what the Bible says in Hindi translation. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. In every situation, if you're sad, enter His gates with thanksgiving. अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, enter His gates with thanksgiving. अगर आप excited हैं, then all the more enter His gates with thanksgiving. If you're confused, enter His gates with thanksgiving. So just let's sing a few songs of praise and worship. And my only prayer is that each one of you, your hearts will be stirred up for the Lord as we sing and worship together. And as we also later on listen to the word of God through Pastor, I just pray that not only you but even me, each one of us will be excited and we'll be blessed tremendously. Our hearts will be encouraged and we'll be blessed with new visions. We'll be blessed with a new a new goal in our life for the Lord and for ourselves. And before we sing songs of praise and worship, let's just close our eyes, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें. And let's welcome the Holy Spirit also as we enter into a time of singing and praising and dancing. Though you all are at home, let's clap our hands wherever we are. Let's sing. Feel free to stand up and praise the Lord exactly how you would do it in the church. Okay, and there should be nothing that should be hindering you to worship the Lord, right? Because हम जिस तरीके से हम लोग कलीसिया में चर्च में खड़े होके ताली बजाते हैं, उसी तरीके से घर में भी we can do the same thing. Thank you Jesus for this wonderful day, Lord, that you have given us. प्रभु जी, सुंदर दिन का और समय का हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है, that you have blessed us with, Lord Father. Lord, I thank you that, Lord, we could get together and spend some time, Lord, giving thanks to you, Lord Father, because your love endures forever, your mercy endures forever, and your promises are forever, Lord Jesus. And this minute, Lord Father, I just pray for a very powerful time of praise and worship, Lord Father. Just commit this time into the hands of the Holy Spirit, Lord. And I pray, Lord Father, we just want to welcome the Holy Spirit here. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस समय कि आप हमारे हृदय में चलन करने पाए. That you will work in our hearts. You will work in our heart and you will also speak to us. आप हमारे हृदय को छुएं और हमसे बात करिए. Just speak to our hearts, Lord Father, and may each one of us be encouraged, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। Thank you Jesus. Yes Father, welcome you Holy Spirit, पवित्र आत्मा। हम इस जगह इस समय आपका स्वागत करते हैं। We welcome you. You are so wonderful Lord Jesus. There is no one like you प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। We just thank you Lord Father. We just want to worship you Lord Father this morning. We was with reverence in our heart Lord Father, we just come before you Lord, singing praises Lord Father to your name, giving glory to your name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Thank you brother Danny for this amazing time of worship. और आज हमारे बीच में है पास्टर विनीशा, जो कि गरुड़ जो कि एक छोटा सा टाउन है उत्तराखंड में, इंडिया में, हिमालयाज़ में। एंड पास्टर विल्सन जोसेफ एंड पास्टर विनीशा जोसेफ वहाँ पे मिशनरीज़ के रूप में गए थे कुछ साल पहले, आई थिंक अराउंड 10 years पहले, और एक छोटी सी कलीसिया की उन्होंने स्थापना करी थी। और आज वो कलीसिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उन्होंने ना केवल अपनी कलीसिया लेकिन जगह जगह पहाड़ों पे बहुत सारी कलीसियाँ भी प्लांट करी हैं, और परमेश्वर का काम बहुत तायत से उस पूरे रीजन में हो रहा है। एंड पास्टर विनीशा इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल मदर टू प्रशांत एंड आई. इट इज़ अ privilege to have her with us. So I know God is going to speak to you. So I am really excited to hear what God has for us. So let's go to Pastor Vinisha. सबको जय मसीह की। फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड चर्च न्यूजीलैंड को, पास्टर प्रशांत को, पास्टर जसलीन को, मुझ विनीशा जोसेफ की तरफ से बहुत सारा प्यार। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि आप दोनों को हम आत्मिक बच्चों के रूप में बढ़ा सके, तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको, आपकी सेवकाई को और आपकी सेवकाई में जुड़े हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने मुझको ये मौका दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातों को जो आपके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए फायदेमंद है, बल्कि इस संसार की बहुत सी माओं के लिए, लगभग सारी माओं के लिए एक बहुत फायदे की चीज है, उसको मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन के संग मैं ये बताना चाहती हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर बात करना चाहता है ऐसी माओं से कि जिनके बच्चे बीमार हैं, या ऐसी माओं से और ऐसी माओं से जिनके बच्चे किसी न किसी पाप में या किसी संघर्ष में हैं, ऐसी माओं से जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि वो कभी मां नहीं बन सकती, उनके शरीर में या उनके हस्बैंड के शरीर में कुछ तकलीफ है, और ऐसी माओं से जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अबॉर्शन करा है, गर्भपात करा है। मैं ऐसी माओं से वचन के द्वारा आपके सामने कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय और उसके 8 पद से लेके हम पढ़ना शुरू करेंगे। 8 पद से लेके पढ़ेंगे हम 30 पद तक, उसके 30 पद तक, 30 पद से 8 से 30 पद तक पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8 to 30। यहाँ पर लिखा है 2 किंग में एक स्त्री के बारे में बात करता है परमेश्वर का वचन, और ये एक सच्ची घटना है कि जब एक स्त्री जिसको बच्चे नहीं थे, और जब उसको बच्चे नहीं थे मगर वो उसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो एक कुलीन स्त्री, मतलब एक बहुत अच्छी स्त्री थी, बहुत अच्छी स्त्री थी, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। इसके 8 पद में लिखा है, एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने के लिए उतरता था। एक स्त्री जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक स्त्री जब उसके घर के सामने से, उसके घर के पास से परमेश्वर का एक दास जाता था
और वो उस दास को नहीं जानती थी, ना वो दास उसको जानता था, मगर वो स्त्री ये जानती थी कि ये एक परमेश्वर का जन है और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो उसको रोटी खाने के लिए, उसको खाना खाने के लिए विवश करती थी कि मेरे घर में तुम खाना खा के जाओ ना। और फिर वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर का दास उस रास्ते से जाता था वो उस स्त्री के घर में खाना खाता था। और उसके बाद इसके 9वें पद में लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में ठिका करे। पहले के जमाने में जैसे हम जानते हैं कि लोग बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते थे और जब यात्रा करते थे तो बीच बीच में कहीं कहीं गांव में रुकते थे, मगर ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का एक दास, इसका नाम एलीशा है, जब वो उस शूनेमी स्त्री के घर के सामने से होके जाता था, वो परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि दास उसके घर में जाता था, वो सिर्फ रास्ते के सामने से जाता था। अगर वो जो स्त्री थी जिसके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कुलीन स्त्री, एक नोबल लेडी, एक अच्छी स्त्री, वो उसने क्या करा, उस दास को देखा और उसने क्या कहा, वो हमेशा उसको विवश करती थी, आप आइए मेरे घर में खाना खा के जाइए। फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन बता रहा है 9वें पद में कि उसने अपने पति के संग इस बात को डिस्कस किया और उसने कहा कि ये जो व्यक्ति हमारे घर के सामने से बार बार जाता है, आता है, मुझे वो परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है। मेन बात कि वो स्त्री उस व्यक्ति में परमेश्वर के पवित्र जन को देख रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र जन था। और यहाँ मुझे नहीं मालूम, यहाँ नहीं लिखा है कि वो एक इजरायली स्त्री थी कि इसलिए वो उसको परमेश्वर का जन जान रही थी, मगर वो एक ऐसी स्त्री थी जो अच्छी स्त्री थी। और उसने क्या कहा, उस स्त्री ने उसको अपने यहाँ पर रोका और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बता रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड से बात करने लगी कि हम उसके लिए इस तरह का एक अरेंजमेंट करें कि हम अपने घर के ऊपर एक कोठी बना दें, एक छोटा सा उसका कमरा बना दें और उसकी आवश्यकता की चीजें जैसे कुर्सी, मेज, दीवट, पलंग वगैरह उसके लिए रखें, ताकि जब भी कभी वो परमेश्वर का दास हमारे घर के सामने से जाए तो वो वहां आके रुके, विश्राम करे। इन सारी बातों के पीछे यह है कि वो स्त्री एक अच्छी स्त्री थी और वो परमेश्वर के दास को पहचानती थी और उसके मन, उसकी आत्मा परमेश्वर के दास के लिए, यानी कि परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। जब भी परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हम कुछ करते हैं तो वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। तो ये स्त्री जो थी उस व्यक्ति को, उस परमेश्वर के दास को पहचानती थी और पहले उसको रोटी खाने के लिए विवश करती थी। फिर उसने योजना बनाई कि चलो इसके लिए हम कुछ और क्या कर सकते हैं और उसने अपने घर के ऊपर एक कोठरी बनाई और उसमें क्या करा, उसने उसके लिए इंतजाम किया कि वो जब भी आए विश्राम करे और खाए, है ना। और क्या होगा कि वो जब विश्राम करेगा तो उसको आशीष देगा ना, मगर उसको आशीष की वो उसमें चक्कर में नहीं थी कि मुझे आशीष मिले, मगर वो परमेश्वर के दास का आदर कर रही थी। तो परमेश्वर हर एक वो स्त्री को, हर एक वो व्यक्ति को जानता है जिसकी आत्मा में ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप शायद मसीह को ना जानते हो, यीशु मसीह को ना जानते हो, मगर आपको पता है कि परमेश्वर आपको जानता है। अगर आपकी आत्मा में वो प्रेम परमेश्वर के लिए है, वो सृष्टिकर्ता के लिए प्रेम है, तो हो सकता है आप यीशु को ना जानते हो, मगर फिर भी आपके अंदर जो सृष्टिकर्ता के लिए प्रेम है वो आपको उत्साहित करता है, आपको आगे बढ़ाता है कि आप परमेश्वर का जो जन, जो आपकी आत्मा पहचानती है कि परमेश्वर का जन है या परमेश्वर के लोग हैं या ये कोई आवश्यकता में कोई व्यक्ति है, उसकी मदद करने के लिए आपकी आत्मा आपको उकसाती है। तो ये स्त्री ऐसी ही एक स्त्री थी। इसके लिए हमने पहला बात सीखा कि किस तरह की स्त्री थी। उसके बाद इसके चौथे अध्याय के फिर 16वें पद में हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में 4 के 16 में, तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। मैं इसके पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये स्त्री थी, इसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो क्या थी, उसके पास बच्चा नहीं था। तो यहाँ पे 11वें पद में लिखा है, एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौली कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। कौन टिका? परमेश्वर का दास। एक बार फिर उस घर के सामने से जा रहा था और फिर वो क्या हुआ, उस अपनी कोठरी में जो उस स्त्री ने बनाई थी वहां जाके रुका और वहां पे जब लेटा तो उसके बाद लिखा, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, वह उसके गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई।
तब उसने गेहजी से कहा, इससे क्या है कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो आप अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा हो गया है। तो उसने जब इतनी सारी उसने उस परमेश्वर के दास की चिंता करी, उसको खिलाया, उसके ठहरने की व्यवस्था करी, सब कुछ करी, तो एक दिन परमेश्वर का दास जब उसके घर में रुका, उसके मन में भी आया कि ये स्त्री हमारे लिए इतना इसने हमारी चिंता करी है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने क्या करा, अपने नौकर को बोला कि जाओ उसको बुला के लाओ। और जब वह स्त्री सामने आई तो उसने उससे पूछा कि तूने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, बता हम तेरे लिए क्या करें। तो उसने कहा, क्या मैं तेरी राजा से चर्चा करूं, राजा को तेरे बारे में बताऊं या और कुछ तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। उसने अपनी आवश्यकता को, जो उसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी कि उसके पास कोई संतान नहीं थी, मगर इस स्त्री ने उस आवश्यकता को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ये एक असंभव बात है, इसका टाइम ओवर हो गया, ये पीरियड बीत गया है, अब ये चीज मेरे जीवन में नहीं आएगी। मगर परमेश्वर ने उसके दास ने, परमेश्वर के दास के सेवक जो गेहजी, एक भविष्यवक्ता एलीशा, उसका सेवक जो गेहजी है, वो गेहजी ने क्या कहा, उससे कहा कि निश्चय इसके कोई पुत्र नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो गया, जो एक बड़ी नीड है और उस स्त्री ने छुपा रखी थी क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि मेरी पूरी हो जाएगी। तब गेहजी ने इससे कहा। फिर परमेश्वर के दास ने क्या कहा, इसके बाद लिखा है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति भी बूढ़ा हो गया, यानी कि कोई उम्मीद नहीं है। तब परमेश्वर के दास ने कहा, उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। है? क्या कहा उसने? हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसी बात नहीं है, तू अपनी दासी को धोखा ना दे। क्योंकि वो ये जानती थी कि ये परमेश्वर का जन है, वो उसकी सेवा टहल करती थी, सब कुछ करती थी, मगर उसके अंदर अपनी ही जो उसकी एक नीड थी कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं था, उसके लिए उसके पास विश्वास नहीं था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इस उम्र में जब मेरा हस्बैंड बुढ़ा हो गया है, मेरे क्या बच्चा हो सकता है, या मेरी तकलीफ इतनी बड़ी है, अब क्या मैं माँ बन सकती हूँ, इसके लिए उसके पास विश्वास नहीं था। मगर परमेश्वर का जन, जब परमेश्वर के जन की आत्मा प्रसन्न हुई उसके कामों से, उसकी जो उसने चिंता करी, उसको खाना खिलाया, उसको ठहराया, जब परमेश्वर का जन अपनी आत्मा में प्रसन्न हुआ तो उसने क्या कहा, उसके मन में आया कि इस स्त्री के लिए कुछ किया जाए। और जब उसके मन में आया, उसने पूछा, फिर भी वो स्त्री ने नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे बताने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसका दिमाग उसको कहता था कि अब तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मगर जब परमेश्वर के दास ने सुना तो इसके 16वें पद में लिखा है, तब उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। मैं इस पे आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि हमारे सेवकाई में ऐसी एक गवाही हुई, बहुत सी गवाही हुई, जिसमें एक गवाही जो इस शुनेमिन स्त्री से बहुत मैच करती है कि एक बहन हमारी सेवकाई में आई, जिसकी शादी को शायद 7 साल या 6-7 साल ऐसे पूरे हो गए थे, और उसकी शादी को इतने साल पूरे हो गए थे, मगर उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। और इस बात को उसका पूरा गांव जानता था और उसका पति भी जानता था कि मेरी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसको डॉक्टरों ने मना कर दिया, उसके शरीर में ऐसी तकलीफ थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी सेवकाई में एक बहन ऐसी आई जिसका नाम मैं बता नहीं सकती हूँ, मगर उसकी ये समस्या थी कि वो उसकी शादी को 6-7 साल हो गए थे, मगर उसके पास कोई बच्चा नहीं था। और ये बात को उसका गांव, उसका पति, सब इस बात को जानते थे कि ये कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि बचपन से उसके संग कुछ ऐसी समस्या थी और डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था ये कभी मां नहीं बन पाएगी। मगर जब हम लोग सेवा के उस क्षेत्र में पहुंचे और हमने उससे पूछा तो उसने हमको बताया, मेरी ये
नीड है, मगर समस्या ये है कि कभी हो नहीं सकता। जैसे इस स्त्री को पता था कि उसकी वो नीड है, कि उसके पास बच्चा नहीं है, मगर उसको अपने दिमाग में ये पता था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मुझे कोई बच्चे की आशीष मिले। तो सेम ऐसा ही उस बहन के संग था। उसको पता था उसकी नीड है कि उसके पास बच्चा नहीं है, शादी को इतने साल हो गए, मगर उसका दिमाग उसको कह रहा था कि ऐसा तुम्हारे संग कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए उसने हमसे, जब हमने उसको फोर्स किया मैंने, तो उसने मुझे बताया कि दीदी मेरे संग इस तरह की समस्या है। तो हम लोगों ने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसके लिए प्रार्थना करी, उसके पति को उसको बुला के अपने घर में उनके लिए प्रार्थना करी। और उस समय वो कोई ट्रेनिंग में थी, बाहर किसी ट्रेनिंग में थी। तो उसके 4-6 महीने बाद एक बार अचानक रात को 11:30-12 बजे उसका फोन मेरे पास आया, और मैं उस समय नींद में थी। और उसने मुझसे कहा, दीदी मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मुझको लग रहा है कि मुझको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, और मेरे एकदम नसें सब ब्लू हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं नींद में थी, मुझको नहीं मालूम, और एकदम से मेरे मुंह से निकला कि नहीं, ये तुमको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर तुम्हारी कोख को झंगा कर रहा है। और जब मैंने इस तरह से बोला, और बोलने के बाद अपनी आवाज को सुना, तो मैंने कहा, ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने कहाँ से बोला, बल्कि परमेश्वर मेरे मुंह से उस बात को उससे बोल रहा था। और उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमको पता चला कि सच में वो बहन परमेश्वर की आशीष पा चुकी है, और प्रभु ने उसको एक गर्भ का फल दिया है। और फिर हमने उसके लिए प्रार्थना करी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे शूनेमिन स्त्री है, और ये शूनेमिन स्त्री को अपनी नीड पता है कि उसके पास बच्चा नहीं, उसको एक बच्चा चाहिए, मगर उसका दिमाग क्या कह रहा है कि ऐसा तुम्हारे संग कभी हो नहीं सकता। मगर परमेश्वर का दास और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, उस बात को हम देखेंगे। इसमें लिखा है, 16वें पद में लिखा है, परमेश्वर का दास उसको कह रहा है कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी, है ना। और स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। जब परमेश्वर का दास उसको आशीष दे रहा है, बोल रहा है, तब भी वो विश्वास नहीं कर पा रही है ना। तो इसका मतलब उस बात, वो समस्या उसके लिए कितनी बड़ी समस्या थी। मगर परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन हमेशा अपने वचन के अनुसार वो काम करता है। परमेश्वर के दास के मुंह से निकला हुआ वचन कभी गिरता नहीं है, वो हमेशा उस उत्तर को लेके आता है। इसका हम धन्यवाद करते हैं। उसके 17वें पद में लिखा है, स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तो तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जो समय परमेश्वर के दास ने कहा था, उसी समय में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इसके द्वारा मैं आप उन सब बहनों को, जिनके पास कोई संतान नहीं है और जिनका दिमाग उनको कहता है कि तुम्हें संतान मिल भी नहीं सकती, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज की संध्या मैं आपको इस बात में उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको संतान दे सकता है। परमेश्वर संतान को दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है ना। जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी, परमेश्वर के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर को वचन को अपने अंदर लेंगे और प्रभु के वचन और प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपको इस असंभव आशीष को भी दे सकता है, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया नहीं हो सकता, जिसको आपके परिवार, आपका गांव, आपका घराना कहता हो नहीं हो सकता, उसको प्रभु कहता है हो सकता है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। उन सारी बहनों के लिए समय मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको संतान की आशीष नहीं है, पिता यीशु के नाम में इसी समय वो बंद को खुलने पाए पाती राला संदे। और परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर के एक जीवन उनके अंदर यीशु के नाम में जारी होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब मैं उन स्त्रियों से बात करना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे हैं, मगर हो सकता है वो बीमार है या किसी तरह के पाप में या किसी तरह के संघर्ष में फंसे हैं। इसी घटना से हम आगे पढ़ेंगे। इसके 18 पद में लिखा है कि जब वो लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने पिता के संग था और अचानक बोलने लगा कि पिताजी मेरे सर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो एकदम से पिता ने कहा कि इसको इसकी माँ के पास पहुंचा दो। और जब वो माँ के पास गया, इसके 20वें पद में लिखा है, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। माँ के घुटनों पर दोपहर तक वो बच्चा बैठा रहा, उसके बाद क्या हो गया, वो बच्चा मर गया ना। जब बहनें अपने बच्चों की बीमारियों के लिए परेशान है, अपने बच्चों की बुरी आदतों से परेशान है, अपने बच्चों की तंगियों से परेशान है, उनको परमेश्वर का वचन इस समय आपसे बात करेगा। और उसने उसके बाद लिखा 21 पद में, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया और निकल कर द्वार बंद कर
किया तब उतर गई। उसने क्या करा, सबसे पहले उस बच्चे को लिया जो मर चुका था और जाके परमेश्वर के जो उसने कोठरी बनाई थी, जो कमरा उसके लिए पलंग वलंग सब लगा के रखा था, उसी चरपाई पे उसने जाके उस बच्चे को लिटा दिया। परमेश्वर का आत्मा इसके द्वारा, इस एक वचन के द्वारा मुझसे और आपसे ये बोलना चाहता है कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा स्थान है, क्या आपके घर में कोई ऐसा स्थान है कि जहां पर आप अपनी समस्याओं को जाके रख सकते हैं? क्या आपने कोई ऐसा स्थान तैयार किया है जहां आप जाकर अपनी समस्याओं को रख सकें? आपको बताऊं वो स्थान क्या हो सकता है? वो स्थान जहां पर आप प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहां पर आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, रबा शाथियाला हदरना सांदे। वो स्थान होता है जहां पर आप अपनी मरी परिस्थितियों को, अपनी समस्याओं को जाकर रख सकते हैं। खूरिया अंदर आला खरियाना सात तरेले, उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं? अपनी मरी हुई परिस्थितियों को, अपनी ऐसी बातों को जिनके लिए आपको दिखता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, संसार की दृष्टि में कुछ हो नहीं सकता। वो बच्चा मर चुका था, उसने जाके कहाँ रखा? उसने उस खाट पे रखा ना। वो खाट कैसे तैयार हुई? वो खाट उसके अच्छे व्यवहार, उसकी अच्छी आत्मा के द्वारा, उसके लोगों को और परमेश्वर के दासों और दासियों के लिए जो वो काम करती थी, उसके द्वारा वो खाट, इट मीन्स वो वेदी तैयार हुई ना। जो आपके अच्छे काम है, जो आप प्रभु की तरफ खींचे चले आते हैं, जो परमेश्वर के लिए आप करते हैं, वो सारी बातें क्या करती है? एक वेदी तैयार करती हैं कि जिसपे जाके समय में, असमय में अपने परेशानियों को, मरी हुई परिस्थितियों को आप उस वेदी पे रख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के लिए। फिर उसके बाद लिखा 22वें पद में, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। फिर उसने क्या करा? जल्दी से बच्चे को उस खाट पे रखा और तुरंत परमेश्वर के दास से मिलने को जाने लगी। तब उसके बाद आगे लिखा है कि उसने 23 पद में उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। पति पूछने लगा, अरे आज अचानक तुम क्यों जा रही हो? आज तो कोई ऐसा आराधना का दिन भी नहीं है। तो उसने कहा कि कल्याण होगा। और उसके बाद जब वो जाने लगी, आगे घटना बताती है कि जब वो जाने लगी तो परमेश्वर के दास ने उसको दूर से देख लिया कि अरे ये तो शूनेमिन स्त्री आ रही है। तो उसने क्या करा? अपने उसी दास को जिसने उसको बुलाया था घर से कि बता तेरी क्या आवश्यकता, उसको भेजा था बुलाने के लिए, उसी दास को दोबारा भेजा कि जा तू देख वो शूनेमिन स्त्री आ रही है, वो क्यों आ रही है आज ना। तो दास जल्दी से उसके पास गया और यहाँ पे लिखा है इसके 26 पद में, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया और उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु उसका मन व्याकुल है। जब वो स्त्री ने कहा, उसको नौकर को कह दिया हाँ सब ठीक है, मगर जब परमेश्वर के दास के पास गई तो उसका पैर पकड़ के वो रोने लगी। और क्या करा? परमेश्वर का दास जो भविष्यता था, जब उसका दास उसके पास आया तो उसने देखा, अरे स्त्री तो मेरे मालिक का, इस भविष्यता का पैर पकड़ के उसको छोड़ नहीं रही है, रो रही है। तो उसने क्या करा? उस स्त्री को धक्का देके हटा दिया। मगर मुझे एक बात परमेश्वर के वचन में इस समय यहाँ उसकी आत्मा ने दिखाई कि परंतु परमेश्वर के दास ने क्या कहा? परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। हाँ, परमेश्वर का भविष्यवक्ता कह रहा है कि जब वो स्त्री रो रही थी, उसका दास हटा रहा था, उसने कहा मत कर, इसको हटा मत, क्योंकि उसका मन व्याकुल है। मगर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है साथ में? मगर परमेश्वर ने मुझको नहीं बताया, अभी तक मुझसे छिपा रखा है। यहाँ परमेश्वर की आत्मा एक बात हमें सिखाना चाहती है कि वो बच्चा जो गर्भ में नहीं आया था, उस बच्चे को गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को बता दिया था कि ये स्त्री के लिए प्रार्थना जब उसने की कि कौन सी ऋतु में वो बच्चा पैदा होगा, वो डेट भी, वो महीना, वो सब कुछ उसको बता दिया था। जब तक बच्चा कंसीव भी नहीं हुआ था, उसके आने की बात उस दास ने, परमेश्वर के दास ने, भविष्यवक्ता ने उस स्त्री को बता दी थी। मगर जब बच्चा मरा तो परमेश्वर का दास कह रहा है, मुझे परमेश्वर ने नहीं बताया, अभी तक छिपा के रखा है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को बात नहीं बताई? जब बच्चा पैदा होने से पहले की बात बता दी और बच्चा मरने की बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों को, समस्या को कैसे डील करते हैं, वो परमेश्वर देखता है। अगर आप अपनी मरी परिस्थितियों को, अच्छा अब ये मर गई, इसको ढांक देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो खत्म हो जाएगी।
मगर अपनी मरी परिस्थितियों को, उन मरी बातों को, हो सकता है आपके बच्चे की बीमारी के लिए किसी ने कह दिया हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि ये कभी चंगा नहीं हो सकता है ना, आप कहें हाँ ये बच्चा आप कभी चंगा नहीं हो सकता, उस चीज पे आप पर्दा डाल दें, उसको वैसे ही ले लें तो वो कभी हो नहीं सकता। मगर जब आप उस बात को सुनते हैं कि लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, और आप कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे को परमेश्वर चंगा करेगा, मेरे बच्चे को परमेश्वर छुटकारा देगा, मेरे बच्चे को परमेश्वर फिर से जीवित करेगा, तो वो बात हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर इस समय ये चाहता था कि वो शूनेमिन स्त्री, जिसको परमेश्वर ने योग्य ना होने पर भी, शरीर में दुर्बल होने पर भी, समय बीत जाने पर भी बच्चे की आशीष दी, क्या उसके अंदर अब इस आशीष को पाने के बाद ये विश्वास है कि परमेश्वर है और प्रभु उसकी मरी परिस्थिति को एक बार फिर से जीवित कर सकता है। जब मरी कोक को जीवित कर सकता है तो कोक के बाद बाहर आए हुए बच्चे को परमेश्वर क्यों नहीं जीवन दे सकता? कोक में भी उसी ने जीवन दिया और बाहर भी वही जीवन देने वाला परमेश्वर है। मगर परमेश्वर चाहता है कि वो स्त्री, वो बहनें जिनके पति, जिनके बच्चे इस परिस्थिति में है कि वो खत्म सी है, एकदम खत्म हो गई है परिस्थिति, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो अपने बच्चों के लिए, मगर जब आप परमेश्वर के सामने अपने इस विश्वास को ले जाते हो ना, यहाँ पर लिखा है कि उसके 29 वर्ष में लिखा है, तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर जा, मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल पूछना, ना उसका कुशल पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने, ये बात ध्यान से सुनिए, तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। ये विश्वास था जिसके द्वारा उसका बच्चा, उसका बेटा जीवित हो गया ना। पहला विश्वास उस भविष्यवक्ता का था क्योंकि वो उसके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने कंसीव करा। मगर दूसरा विश्वास, जब बच्चा मर गया था तो उस माँ का विश्वास था। उस माँ ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं जब तक तू इस बच्चे को जीवित नहीं कर देगा ना। और उसके बाद लिखा है कि यह सुनकर क्या हुआ, उसने छोड़ूंगी, इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला, और उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा। छड़ी को तो लड़के के मुंह पर नौकर ने रखा, मगर लड़का चंगा नहीं हुआ। और फिर वो जब दोनों ये शूनेमिन स्त्री और भविष्यवक्ता वापस घर की तरफ जा रहे थे, उस लड़के की तरफ जा रहे थे, नौकर तो पहले दौड़ गया था, मगर फिर क्या गया, नौकर ने आके बताया कि मैंने छड़ी उसके मुंह पे रखी, मगर वो जीवित नहीं हुआ। फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं कि जब वहां पर वो पहुंचा, भविष्यवक्ता उस कमरे के पास पहुंचा, उस ऊपरी कोठरी पे पहुंचा। इसके 32 पद से लिखा है, जब एलिशा ने घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है, उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह लड़के पर इस रीति से लेट गया और अपना मुंह उसके मुंह पर और अपनी आंखें उसकी आंखों पर रखी। और ये सारी वो बातें बताती हैं कि उसने किस तरह से प्रार्थना करी। मगर उसने प्रार्थना करी और उसके घर जाने तक का कारण ये था कि उस स्त्री ने कह दिया था कि यहोवा के जीवन की शपथ, ना मैं तुझे छोड़ूंगी ना परमेश्वर को छोड़ूंगी जब तक मेरा बेटा चंगा नहीं हो जाता। तो आपको परमेश्वर यही चाहता है कि आपके अंदर वो विश्वास आए कि आप कहें, नहीं परमेश्वर तुझे करना पड़ेगा, तू मेरे बच्चे को चंगा करेगा, तू मेरे बच्चे को छुटकारा देगा, तू मेरे बच्चे को इस पाप से आजाद कराएगा। जब आप इस तरह के एक आशा को रख के प्रार्थना करती हैं तो परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना के अनुसार काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि एक स्त्री जब उसके पास आ गई उसके अपनी बच्ची के लिए, तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। इस तरह से यीशु ने जवाब दिया। मगर उस स्त्री ने कहा, कुत्ते भी वही खाते हैं जो टेबल से गिर जाता है ना। आपके विश्वास में कितनी निश्चयता है, आपके विश्वास में कितना निश्चय है, इस बात पे आपका चमत्कार रिलीज होता है। परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के लिए। और फिर इसके बाद लिखा है उसके 26 पद में 36 वर्ष में, तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसको बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। जब प्रार्थना करी परमेश्वर के दास ने तो बेटा जीवित हो गया और भविष्यवक्ता ने फिर से उसको बेटा सौंप दिया।
मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। अभी मैंने आपको गवाही बताई कि किस तरह से विश्वास के द्वारा उस स्त्री ने उस मरी हुई कोख में बच्चा पाया। और अभी एक गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक माँ थी, उसका जवान लड़का था और वो लड़का बहुत सारे गंदे कामों में लग गया था, गलत रिलेशंस में लग गया था। और ये हमारी सेवकाई के बीच की ही घटना है और बहुत सी बुरी बातों में लग गया था। वो माँ समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे और उसका पिता समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, मगर हमने उस बहन को कहा तुम सिर्फ प्रार्थना करो। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों से बातचीत करके उनको सुधारने की कोशिश करते हैं मगर नहीं हो पाता। हम अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से सुधारने समझाने की कोशिश करते, नहीं हो पाता। हम अपने बच्चे जो बीमार हैं उनके लिए अलग अलग दवाइयां, अलग अलग डॉक्टर, बड़े बड़े इलाज कराते हैं मगर नहीं हो पाता। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, इस घटना के द्वारा आप इसे उत्साहित हो सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चयता के संग आप प्रार्थना करें, आपके बच्चे जरूर चंगे होंगे। निश्चयता के संग आप प्रार्थना करें, आपके बच्चे जरूर पाप से आजाद होंगे। निश्चयता के संग आप प्रार्थना करें, आपके बच्चे जरूर उस परिस्थिति से जो असंभव है आजाद होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस मदर्स डे के लिए और इस मदर्स डे में इस अच्छे वचन के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने हमें बताया प्रभु, सिखाया परमेश्वर कि मरी हुई कोख में भी परमेश्वर किस तरह से आप जीवन डालने वाले परमेश्वर है। आप असंभव काम को संभव करने वाले परमेश्वर है। प्रभु मेरी प्रार्थना इस समय इस टेलीकास्ट को जितनी भी ऐसी बहनें देख रही हैं परमेश्वर, जिनकी कोख प्रभु मरी है परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके जीवन को परमेश्वर, उनको स्त्रियों के ऊपर, उस कोख के ऊपर आपके जीवन को बोलती हूँ परमेश्वर और प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर, ओ आपका जीवन ओ जारी होने पाए। यीशु के नाम में आपका जीवन जारी होने पाए। प्रभु शून्य से सब कुछ रचने वाले परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, यीशु के नाम में आज की सुबह में प्रभु, आज के इस मदर्स डे में प्रभु, हर एक बांझ औरत यीशु के नाम में मां भरने पाए परमेश्वर, हर एक बांझ औरत यीशु के नाम में उस सामर्थ्य में आने पाए परमेश्वर कि प्रभु उसकी मरी हुई कोख में परमेश्वर ओ जीवन फूटने पाए राजा, ओ यीशु के नाम में जीवन फूटने पाए। राशो खामा सांदरे रबारी खतरेबा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं सारी माओं के लिए प्रभु, जिनके बच्चे प्रभु किसी बीमारी में हैं और वो चंगे नहीं हो रहे हैं परमेश्वर, बहुत बड़ी समस्या है प्रभु, मगर तेरा वचन प्रभु, ओ प्रभु हर एक बातों में हाँ और आमीन के संग है, असंभव को संभव करने वाला है। तूने कहा यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके परमेश्वर। प्रभु हर एक वो बच्चा प्रभु ओ जिसकी माँ आंसू बहाती है परमेश्वर, उस बीमारी के लिए प्रभु जो उसके बच्चे को है प्रभु, इसी समय परमेश्वर मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, ओ तेरा चंगाई करने वाला हाथ परमेश्वर उन बच्चों पे उतरने पाए राजा। इसी समय यीशु के नाम में चंगाई करने वाला हाथ उतरने पाए प्रभु, और वो बच्चे प्रभु उस मरी परिस्थिति से, उस मरी हुई बीमारी की परिस्थिति से, उस बिस्तर की परिस्थिति से परमेश्वर ओ प्रभु उस कमजोरी से यीशु के नाम में निकलने पाए, यीशु के नाम में निकलने पाए। ओ प्रभु जब ये माँ है प्रभु यीशु तुझ पे विश्वास करके निश्चयता के संग, ओ दृढ़ विश्वास के संग प्रार्थना करती है परमेश्वर, यीशु के नाम में उनके बच्चे चंगे होने पाए प्रभु, ऐसे मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बहनों के लिए जिनके बच्चे परमेश्वर किसी ना किसी गलत रिलेशन में, पाप में है परमेश्वर, ओ प्रभु जी प्रभु होमोसेक्सुअल है परमेश्वर, ओ एडल्ट्री में है परमेश्वर, ओ प्रभु जी किसी भी तरह के नशों में है परमेश्वर, संसार के आकर्षण में है परमेश्वर, ओ प्रभु और माँ रोती है परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में इसी समय परमेश्वर छुटकारा उतरने पाए, उनके बच्चों पे छुटकारा उतरने पाए, यीशु के लहू में बलिदान में छुटकारा उतरने पाए राजा। ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। और इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं उन माओं के लिए प्रभु जिन्होंने प्रभु किसी न किसी कारणवश प्रभु अपने गर्भ के फल को गिराया है प्रभु, ओ प्रभु उस गर्भ के फल को नाश किया है परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कारण चाहे जो भी क्यों ना हो परमेश्वर, जब ये बहनें प्रभु तेरे आगे प्रभु उस पाप को मानती है परमेश्वर, इसी समय वो पाप का बोझ इनके जीवन से झाने पाए परमेश्वर, इसी समय वो पाप का बोझ झाने पाए परमेश्वर। तू इनके पापों को क्षमा कर परमेश्वर,
परमेश्वर, और आगे वो पाप ना करने के लिए तू अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस मदर्स डे के लिए। धन्यवाद करते हैं हम माओं के लिए प्रभु, जिनको तूने आशीष देकर मां बनाया है। यह आशीषित प्रभु जीवन हमें तेरी ओर से मिला है परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुतों के लिए प्रभु आशीष बनने के लिए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम में से हर एक बहनों की आप सहायता करें। और इस वचन के अनुसार प्रभु, ओ प्रभु, ये दूसरे राजा के 4 अध्याय को पढ़ के एक माँ की क्वालिटी को परमेश्वर, एक अच्छे विश्वासी बहन की क्वालिटी को परमेश्वर तू हमारे जीवन में लेके आ परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, सारी आदर और सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आप माओं को आशीष दे और आपको बड़ा, यीशु के नाम में, आमीन। Thank you, Pastor Vinisha, for this amazing and wonderful and powerful word of God. And I believe, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपसे बात करी होगी. So again, I would like to say, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, if you want us to pray for you or get in touch with you, please feel free to contact us. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, and we would love to meet with you and pray with you. जाते जाते एक छोटी सी दुआ करते हैं. Let's close our eyes and prepare our hearts to give thanks to God once again. Thank you, Lord Jesus, for this amazing worship, Lord, and this amazing message that we had today, Lord. We give you all glory and honor and praise, Lord. And as we celebrate Mother's Day, Lord, today, let it not just be a day that we celebrate one day, but help us, Father, to recognize the importance of mothers and motherly figures, Lord, in our lives, oh God. And we speak a special blessing over all our mothers, Lord, all our spiritual mothers and all the women out there, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. So God bless you all. We will see you next week again.